Hello, dear friends. I hope you are enjoying my online classes. And as you know, the third unit is going on the chapter B, and we are studying about friction. In first two lectures, we covered some topics of chapter B, and here I am with lecture number 3 on the second part of chapter 3B, third unit के second chapter का third lecture. So I will discuss 3 points with you in this lecture. The first one is work done in moving a body up the inclined plane. In last lecture we calculated the relation for work done in moving a body. We have derived the relation for acceleration of a body coming down on a rough inclined plane with the condition that angle of inclined plane is greater than the angle of friction. In this we will calculate the work done in moving a body up the inclined plane. Work done in moving a body up the inclined plane. So here is your inclined plane having angle theta, and there is a body having mass m, and let us say we move it by d distance on the inclined plane. I'll show you with different colors for better understanding. So weight of the body is always acting vertically downward, that is mg, and if this angle is theta, as I discussed with you in previous lectures, the component perpendicular to the surface will become mg cos theta, and it will give rise to the value of normal reaction, that is equal to mg cos theta. Now this time, as you are trying to pull the box upward, the force of friction is going to be in downward direction. So this is your force of friction F, which is going to be in downward direction, and the applied force will be in upward direction. Because the force of friction is always opposite to relative motion. When we were calculating about the acceleration down the inclined plane, please remember, I would like you to notice that force of friction was in upward direction because the box was moving in downward direction. But now as you are moving the box upward, force of friction will work in opposite direction, and gravity will not change its direction. The gravitational force earlier was also down the inclined plane mg sin theta, and this time also it will be downwards, and that is also equal to mg sin theta. And we know that these two forces they must be balanced by our applied force, and when they are equal, then only we can move up the box with constant velocity. So we know that force required for moving the box of mass m up the inclined plane is equal to mg sin theta, which is the gravitational component, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन दोनों फोर्सेस के बराबर जब अप्लाइड फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट भी काम करे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी काम करे, तब हम किसी बॉक्स को ऊपर चढ़ा पाएंगे. सो दैट मेक कॉमन सेंस. इसीलिए चीजों को ऊपर चढ़ाना मुश्किल होता है, वो भी घसीटते हुए. रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है. तो ये हमारी पहली इक्वेशन, हम इसको बोल देते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है, म्यू आर के. सो दैट इज म्यू एम जी कोस थीटा. तो ये सेकंड इक्वेशन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा. इस इक्वेशन में से अगर हम एम जी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा. ओके, सो लेट अस से रिलेशन हमारा 3 हो गया. एंड फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशंस we know that work done is equal to Fd, or in this case also F and D are in same direction, so there is no cos theta component. Cos 0 will become 1, so W is equal to Fd. Now I can put the value of F safely from equation 3, and let us say this is equation 4. So putting the value of F mg bracket sin theta plus mu cos theta from equation 3 in equation 4, W is equal to mgd
sin theta plus mu cos theta. So that is your final relation for work done in moving a box up the inclined plane. So coming to the second topic, friction is a necessary evil. घर्षण एक आवश्यक बुराई है. Friction is a necessary evil. तो फ्रिक्शन एविल है, हमें पता है फ्रिक्शन बुरा है, लेकिन फ्रिक्शन जरूरी क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से हमें नुकसान होता है, मशीनरी वेयर एंड टियर आती है, हीट अप हो जाती है, बट स्टिल फ्रिक्शन इज नेसेसरी. आई विल डिस्कस विद यू फ्यू पॉइंट्स व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी, व्हाट आर द थिंग्स और द operations which will become meaningless, which will not be possible, things which will be impossible without friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कितनी सारी चीजें हैं ऐसी जो नहीं होती. वो चीजें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ. एंड दोज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ वॉकिंग. वॉकिंग हम नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ग्राउंड पे पीछे की तरफ तो हमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलता है आगे की तरफ, और अगर वो फ्रिक्शन हमें नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही खाली जगह पे हमारे पैर पीछे जाते रहेंगे और हम आगे चल नहीं पाएंगे. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते. हमारे ऑटोमोबाइल जितने भी हैं वो चल नहीं पाते क्योंकि वो टायर्स से फ्रिक्शन के बेस पे चलते हैं. नंबर 2, ये वीडियो लेक्चर पॉसिबल ना होता अगर फ्रिक्शन ना होता, तो मैं बोर्ड के ऊपर लिख ही ना पाता अगर फ्रिक्शन ना होता. तो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग. राइटिंग आपकी पॉसिबल ना हो पाती अगर फ्रिक्शन नहीं होता. नंबर 3, अगर मैं आपसे बात करूं, so all the adhesives will lose their purpose. एडहेसिव काम करना बंद कर देंगे. ये प्लाई बोर्ड इस बोर्ड से फेविकोल से चिपका हुआ है, और फेविक्विक और सेलो टेप, डक्ट टेप, जितनी भी आपके पास पेस्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी फ्रिक्शनल फोर्स की कैटेगरी के अंदर ही आती हैं, बिकॉज दैट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो हमने ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन वाली डेफिनेशन में पढ़ा था. तो ये हमारे पास पॉसिबल ना हो पाता. नंबर 4, अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्रिक्शन बेस के ऊपर आपने देखा होगा हमारी बेल्ट मूवमेंट होती है मशीनरी की. जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक रोल के ऊपर दूसरा आपका 2 रोल है और उनके ऊपर एक रबर बेल्ट मूव करती है, तो दैट रबर बेल्ट इन मैनी मशीनरीज इज मूविंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन. जितने भी आपकी कॉम्प्लेक्स मशीन डिजाइन है जो हमने नट एंड बोल्ट सिस्टम से जिनको हमने ग्रिप किया हुआ है, तो मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, एरोप्लेन, स्पेसशिप, इन सब के अंदर नट बोल्ट कहीं ना कहीं लगे हुए हैं. और अगर ये नट बोल्ट काम नहीं करेंगे तो कोई स्क्रू टाइट नहीं होता, तो कोई मशीन बनना ही पॉसिबल ना हो पाती. तो फ्रिक्शन की वजह से ही ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं. आपकी एसी की आउटडोर यूनिट घर के बाहर लगी हुई है, टीवी का फ्रेम टंगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है. तो ये जो सारे चीज़ें हैं जिनको होल्ड पे, जिनको अपने प्लेस पे रखा हुआ है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने रखा हुआ है. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो ये चीज़ें पॉसिबल ना हो पाती. इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बिना पूरी नहीं हो पाती. इसीलिए हम कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेसेसरी एविल है. अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे इसमें वो हम डिस्कस करेंगे कि जो मेथड्स हैं फ्रिक्शन को चेंज करने के वो क्या हैं, कि हम फ्रिक्शन को क्या इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. जवाब है बिल्कुल हाँ, यस, वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रिक्शन. Then question is how. Then I will discuss you few methods of increasing and decreasing friction. फ्रिक्शन इंक्रीज करने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अगर रफ सरफेस यूज करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. दूसरा,
नेचर ऑफ मटेरियल। अब हमें पता है अगर हम स्टील की जगह अगर हम रबड़ यूज करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तीसरा, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन हम स्पाइक्स यूज कर सकते हैं, नेल्स यूज कर सकते हैं। नेल्स एंड स्पाइक्स आर यूज्ड ऑन टायर्स एंड शूज फॉर प्रोवाइडिंग यू बेटर ग्रिप। और एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं सरफेस को तो भी फ्रिक्शन आपका बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल की जो स्क्रीन है अगर उस वाली साइड से हम उसको अपने हाथ में ले तो बहुत ज़्यादा स्टीपर एंगल तक भी हम उसको ले जाएं तो वो स्लिप नहीं करता, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मूथ से भी फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास पॉसिबल हैं। सबसे पहले यूज ऑफ ऑयल और ग्रीस और एनी लुब्रिकेंट फ्रिक्शन कम कर देगा। दूसरा, नेचर ऑफ मटेरियल आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट दोनों में लिख सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील ऑन स्टील यूज करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है। बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, सो उसके लिए हमारे पास है यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग आपने देखे होंगे, इसके अंदर क्या होता है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है और बीच में हमारे पास स्टील बॉल्स होती हैं। और ये रोलिंग मोशन, तो ये स्लाइडिंग मोशन को एक एक्सल आपका अंदर जाता है, यू मे कीप इट मूविंग और स्टेशनरी, और विद रिस्पेक्ट टू दैट आउटर जो आपकी सरफेस है वो मूव करती है। तो जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट रिड्यूस फ्रिक्शन वेरी मच। जैसे आपने खेला होगा वो जो फिजेट्स होते हैं, स्पिनिंग फिजेट, तो उनमें क्या होता है, बॉल बेरिंग लगा होता है। मिक्सी में, मोटरसाइकिल में, एक्टिवा में, कार में, एरोप्लेन में, हर जगह, पंखे में, वॉशिंग मशीन में, हर जगह हमारे पास यूज ऑफ बॉल बेरिंग है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। चौथा पॉइंट, हम सरफेस को स्मूथ करके, स्मूदनिंग ऑफ सरफेस से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं करेंगे, खाली स्मूथनिंग से। पांचवा पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन स्ट्रीम लाइनिंग। तो आपने देखा होगा कई बार जो फास्ट मूविंग बुलेट ट्रेन से जो व्हीकल्स हैं उनकी शेप आगे से इस तरीके से दी जाती है। जैसे अगर ये कोई बुलेट ट्रेन है तो इसकी जो शेप है वो आगे से ऐसे दी जाती है, सो दैट कि जब एयर यहाँ से आए तो एयर जो है वो इस तरीके से उसको स्टॉप ना करे सीधा, एयर विल फ्लो थ्रू द कर्वेचर। जैसे हम पानी में कूदते हैं तो हम अपनी शेप ऐसे बना लेते हैं ताकि हम सीधे पानी पे ना गिरे तो हमें जो है फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये जो स्ट्रीम लाइनिंग है ये एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक कम कर देती है। बोट्स की शेप आगे से ऐसे होती है जिस तरफ हम मूव करते हैं, फास्ट मूविंग ट्रेन, एरोप्लेन्स की जो शेप है तो उसको हम स्ट्रीम लाइनिंग कहते हैं। So I hope you understood this derivation of work done in moving a body up the inclined plane। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, mgd sin theta plus mu cos theta in bracket, and then why friction is a necessary evil and what are the methods of changing friction। I hope you enjoyed my lecture like always. Thanks for watching. Take care. Bye bye.